Good morning, 10th Standard, and welcome back to English class. In our last lecture, we had done this chapter. Madam rides a bus till ये जो madam है, she has already climbed the bus, right? And confidently जो है Welly जिसका नाम है, 8-year-old girl, she takes a ride all alone and she has climbed the bus and confidently she has climbed after taking a lot of inquiry about what to do and what not to do while riding a bus, and the conductor also makes little fun of her, and she goes to sit on a seat which is empty. Okay, so now let us continue with the chapter. Madam rides a bus. It was a new bus. It's outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. And the bus which she had climbed was a new bus, and it seems that it was painted. I mean, newly painted because it was a new bus and it was painted in white with some green stripes. Inside, the overhead bars shone like silver. और अब अंदर जो बस के जो ओवर हेड मतलब अंदर में जो जहाँ अपन बैठते हैं ऊपर जो बार्स होते हैं ना, they were also shining like silver. Directly in front of Valley, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. और जहाँ पर वैली बैठी थी उसके सामने ही एक ब्यूटीफुल सी क्लॉक थी, and the seats were also soft and luxurious. Welly devoured everything with her eyes. She admired everything with her eyes. But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. अब अभी तक तो वैली जो है वो अंदर किस तरह बस होती है वो ही देख रही थी सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद, एंड व्हेन शी स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, राइट? तो क्योंकि वेली तो 8 ईयर ओल्ड गर्ल थी, राइट, छोटी सी बच्ची, अगर सीट पे बैठते हैं तो वो विंडो से बाहर जब हम देखते हैं तो देखो आधी जो विंडो होती है ना उस पे कैनवस टाइप या ऐसे ब्लैक कलर का ग्लास या इस तरह हो जाता है, फिर ऊपर से हमें दिखता है ना, जब हम बस में बैठते हैं। तो व्हेन शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड, she could not see the view outside. Why she could not see the view outside? Because जहां पर उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली जहां से वो देख पा रही थी, तो ऊपर के पार्ट जो विंडो का था जहां से उसको शायद बाहर का व्यू दिखाई देता, वो नहीं हो पा रहा था और कवर हो रहा था कैनवस से. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. तो वो क्या किया उसने, वो अपनी सीट पर ही खड़ी हो गई और बाहर देखने लग गई. शी स्टार्टेड पियरिंग ओवर द ब्लाइंड so that she can see the view outside. The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was a canal, and beyond it, palm trees, grassland, distant mountains, and the blue sky. And now, what did she see? जब उसने देखा बाहर तो बस जो है वो टर्न होकर अलोंग द बैंक ऑफ कैनल मूव कर रही थी. रोड उसने देखे जो नैरो थे, राइट. फिर उसने पाम ट्री देखा, ग्रासलैंड देखे, माउंटेन्स उसको दिखाई दे रहे थे, ब्लू स्काईज उसको दिखाई दे रहे थे. ऑन द अदर साइड was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green as far as the eyes could see. सो बाहर जब उस देख रही थी वो बस के, तो उसको डिचेस भी दिखाई दे रहे थे, डीप पिट्स अगर हम बोल सकते हैं, और ग्रीन फील्ड्स दिखाई दे रहे थे. जहां तक वो दूर तक देख पा रही थी वहां पर शी कुड सी एकर्स ऑफ लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स. ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. Suddenly she was startled by a voice. "Listen, child," said the voice. "You shouldn't stand like that. Sit down." So, and she was wondering, it was so beautiful, it was so wonderful, because everywhere greenery or sky or grasslands, right? Or suddenly she was startled, matlab she was shocked.
राइट, बाय अ वॉइस, जिसने उसको बुलाया, लिसन चाइल्ड, किसी ने उसको बुलाया और बोला, लिसन चाइल्ड, डोंट स्टैंड लाइक दिस, सिट डाउन, बिकॉज वो खड़ी होकर देख रही थी. सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन. तो वो, शी फॉलोड द ऑर्डर इट सीम, एंड शी सैट डाउन, बट शी लुक्ड एट, मतलब वो देख रही थी कि किसने मुझे बोला. राइट, इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन. और किसने बोला था? अ मैन, एन एल्डरली मैन, बड़ी उम्र के, कोई बुजुर्ग होंगे, कोई बड़ी एल्डरली मैन थे, क्योंकि ही वॉज कंसर्न, क्योंकि छोटी सी बच्ची अगर खड़ी होकर और अगर झटका लगेगा बस में अगर, राइट, तो गिर भी सकती है. तो बिकॉज ही वॉज ऑनेस्टली कंसर्न्ड अबाउट हर, so that is why he said, but really did not like it. She was little annoyed, right? There is nobody here who is a child, she said haughtily. और उसने एकदम मतलब बोलती है कि बिकॉज व्हाट डिड दैट मैन से, सिट डाउन चाइल्ड, है ना. तो वो मैन की तरफ देखकर बोलती है, देर इज नो बडी ओवर हियर अ चाइल्ड, मतलब शी मीन्स टू से आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स. तो बहुत प्राउडली जो है वो ऐसा बोलना चाह रही थी कि आई एम नॉट अ चाइल्ड, सो डोंट एड्रेस मी एज एज चाइल्ड, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पेड माई फेयर. और कोई भी बच्चा जो है ना, वो फेयर पे करके कभी भी बस में नहीं बैठता है. So because I've paid my fare, I've paid 30 paisa like everyone else has done, so I'm not a child. The conductor chimed in, oh sir, but this is a very grown up madam. और फिर वो कंडक्टर जो आ, हंस रहा था वैली की हर बातों पर, वो तुरंत एकदम आता है और बोलता है, सर, शी इज़ नॉट अ चाइल्ड, मतलब शी इज़ अ ग्रोन अप मैडम. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? तो कंडक्टर बोलता है कि है ना, आपको लगता है कोई छोटी सी बच्ची कोई अपना खुद का फेयर पे करके अकेले कभी ट्रैवल करती है? नहीं करती है ना. तो शी हैज पेड हर ओन फेयर, सो डोंट कॉल हर अ चाइल्ड. मतलब एक्चुअली ही वाज मेकिंग फन ऑफ हर. Welly shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam. Please remember that, and you have not yet given me my ticket. So Welly got a little angry on the conductor because conductor was making fun of her every now and then. And she says, I'm not madam, so don't address me as madam. And remember, अभी तक तुमने मुझे मेरी टिकट नहीं दी है. I'll remember, the conductor said, mimicking her tone, right? तो कंडक्टर जो है वो भी उसकी वॉइस, उसका टोन जो है, जिस तरह वेली का टोन जो है आ रहा था, उसी तरह ही उसकी एक्टिंग करके, उसको कॉपी करके कंडक्टर बताया, आई रिमेंबर. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वेली टू जॉइंड इन द लाफ्टर. और सब हंसने लग जाते हैं और वेली ऑल्सो जॉइन द लाफ्टर. द कंडक्टर पंच्ड द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. जब हम बस में बैठते हैं तो आप देखते हो ना, कंडक्टर जो टिकट देते हैं वो पंच करके देते हैं. तो कंडक्टर ने टिकट पंच किया और वेली को दे दिया. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट. और कंडक्टर बोलता है जब टिकट देता है, सिंह आराम से अच्छी तरह से बैठो, कंफर्टेबली बैठो. वाई आरंट यू सिटिंग, मतलब वाई यू वॉन्ट टू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर योर सीट. जब तुमने सीट के लिए पे किया है तो खड़े मत रहो, आराम से बैठो. बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड, स्टैंडिंग अप अगैन. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. तो वेली बोलती है कि बट आई डोंट वांट टू सिट, आई वांट टू स्टैंड. तो उसको जो है बताते हैं कि अगर आप खड़े हो जाओगे सीट पर, तो जब बस टर्न्स लेती है, शार्प टर्न्स लेती है, या बम्प अगर आ जाएगा कोई, तो यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ. दैट इज वाई हम आपको बोल रहे हैं कि बैठ जाओ. आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टोल्ड यू, शी सेड इरिटेबली. आई एम 8 years old. फिर से बोलती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं 8 साल की बच्ची हूँ, 8 साल की हूँ, आई एम नॉट अ चाइल्ड. एंड बहुत थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है वो. Of course, how stupid of me, 8 years, my. The bus stopped, some new passengers got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing a seat, Bailey finally sat down.
फिर जब दूसरे स्टॉप पर बस जब रुकी और कुछ और पैसेंजर्स आए, कंडक्टर भी बिजी हो गया, तो वेली को लगा कि इतने पैसेंजर्स अब आ रहे हैं तो कोई मेरी सीट ना ले ले, तो शी फाइनली सैट डाउन. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Welly as the bus started again. अब जब बस चली और उसके पास में वो न्यू पैसेंजर एक जो आई थी, शी वॉज एन एल्डरली वुमन एंड शी केम एंड सैट बिसाइड हर, और उसने उन्होंने मतलब पूछा वेली से कि यू आर ऑल अलोन. Willie found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. अब वेली वो एकदम वुमेन को देखती है और उसको मतलब वो अच्छी नहीं लग रही थी वो वुमेन, और उसके कानों में जो होल्स होते हैं ना इयररिंग्स के, वो भी इतने बड़े बड़े थे और इतनी बड़ी इयररिंग्स उसने पहनी थी जो अगली लग रही थी. मतलब वेली माइट नॉट लाइक इट. Welly was not liking those earrings, and she could smell the beetle nut the woman was chewing and see the beetle juice that was threatening to spill over her lips at any moment. अब बीटल नट मतलब सुपारी, है ना. और वो जो लेडी जो थी वो सुपारी खा रही थी, तो उसकी जो स्मेल आ रही थी, बीटल नट की जो स्मेल आ रही थी वो सुपारी की, वो भी उसको थोड़ी इरिटेटिंग लग रही थी. और जो वो जो सुपारी का जो वो पूरा जो जूस बाहर उसके थोड़े लिप्स पर जो है गिर रहा था, अगली है. अग, who could be sociable with such a person? तो वेली बोलती है कि कौन इस बंदी से बात करेगा, मतलब सारा मतलब सुपारी खा रही है, स्मेल आ रही है. Yes, I'm traveling alone, she answered curtly, and I've got a ticket too. तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपना मतलब आंसर करती है कि स्ट्रांगली वो अपना डिसअप्रूवल बताती है, या शी वाज लिटिल अनॉयड. तो वो कर्टली बोलती है, शोइंग displeasure, that yes, I'm alone and I've also got a ticket. Yes, she's on her way to town, said the conductor, with a 30 paisa ticket. फिर कंडक्टर आता है और फिर बोलता है, yes, she is going to the town and she's purchased a fare, मतलब she's given 30 paisa ticket she has bought. Oh, why don't you mind your own business, said Welly, but she laughed all the same and the conductor laughed too. So Welly मतलब कंडक्टर को भी बोलती है कि why don't you mind your own business, and then suddenly मतलब वो हंसने लगता है, तो even Welly also हंसने लगती है. But the old woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? लेकिन वो जो ओल्ड वुमेन जो थी वो अपनी स्टूपिड सी बातें करती जा रही थी, और वो बोलती है, लेकिन इज इट प्रॉपर, सही है कि इतनी यंग पर्सन अकेले मतलब ट्रैवल कर रही है? डू यू नो एग्जैक्टली वे यू आर गोइंग इन टाउन? व्हाट्स द स्ट्रीट? व्हाट्स द हाउस नंबर? तो वो एल्डरली वुमन जो है वो वेली से पूछती है, तुम्हें पता है टाउन में तुम्हें कहाँ जाना है, कौन सी स्ट्रीट पे जाना है, किसके घर में कौन से हाउस नंबर पे जाना है? You needn't bother about me. I can take care of myself, Welly said, turning her face towards the window and staring outside. So फिर से वेली ने थोड़ा हार्श आंसर दिया उनको कि यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट मी, यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी टेक केयर खुद कर सकती हूँ. इतना बोलकर और उसने अपना फेस जो है विंडो की तरफ टर्न कर लिया एंड शी स्टार्टेड स्टेयरिंग आउटसाइड. Right, we are going to do today till here.